मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे आप लोग? सब लोग ठीक है? इज एवरीबॉडी हैप्पी? डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ SP सर, फुल फॉर्म पता है आपको, शिव प्रसाद सर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे दैट इज 13th October 2020. Today in our 12th economics lecture, I am going to discuss part 2 of balanced budget and unbalanced budget. Why I am saying part 2? Because it was started in the last video lecture. Over there it was part 2 and today is, it was part 1 and today is part 2. Actually it is one topic that is balanced budget and unbalanced budget. So the 50% it was covered in the last video lecture, that is balanced budget I had covered in the last video lecture, and today we are going to discuss that is unbalanced budget. So let me first write on the board, then we will discuss. Okay, don't go away. So today is 13th October 2020 and it's your 12th economics lecture, chapter, you know already, chapter number 5 of your introductory macroeconomics, that is government budget and the economy. Government budget and the economy. My dear students, as I said that don't go away, it was just a joke. So let's start our today's discussion. As I told you earlier that today we are going to discuss unbalanced budget. Unbalanced budget. Dear students, balanced budget we have already discussed. So today unbalance. तो अगर अनबैलेंस है, सो आइदर देयर विल बी सरप्लस और देयर विल बी डेफिसिट. यस और नो? अरे भाई, अगर बैलेंस नहीं है, बैलेंस मतलब क्या? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस बजट. तो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अनबैलेंस, इक्वल नहीं है, क्या इक्वल नहीं है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसीट्स आर नॉट इक्वल. सो आइदर देयर विल बी सरप्लस और देयर विल बी डेफिसिट. कहने का मतलब क्या है? अनबैलेंस बजट का मतलब या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा या गवर्नमेंट का रिसीट्स ज़्यादा होगा. तो अगर रिसीट्स ज़्यादा है तो इट विल बी कॉल्ड एज सरप्लस बजट, और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इट विल बी कॉल्ड एज डेफिसिट बजट. दिस मच इजी, इतना इजी है आपका इकोनॉमिक्स. आप बिना मतलब का डरते हो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी हार्ड. अभी आपको मैंने बताया कितना इजीली एक्सप्लेन किया. यस और नो? ओके, थैंक यू वेरी मच. डियर स्टूडेंट्स, unbalanced budget means is that budget either there will be
surplus in the budget or there will be deficit in the budget. So such type of budget is called as unbalanced budget. So let's discuss first about the surplus budget. Surplus budget. Surplus budget. नाम से समझ में आ रहा है, सरप्लस ज़्यादा, क्या ज़्यादा? रिसीट्स ज़्यादा. When estimated government receipts are greater than estimated government expenditure. Let me write over here, फिर बात करते हैं. Estimated government receipts. Estimated government receipts are greater than का साइन, greater than estimated government expenditure. So such a situation is called as surplus budget. By the way, बोलने के टाइम पे यहाँ पे खाली गवर्नमेंट रिसीट्स नहीं बोला या खाली एस्टिमेट खाली ये एक्सपेंडिचर नहीं बोला. क्या बोला यहाँ पे? estimated government receipts are greater than estimated government expenditure. Why this estimated word is used? Because we know that budget is nothing but estimation. Budget का मतलब क्या? Estimation. Budget मतलब plan, that how much government is going to make expenditure and government how much is going to receive in the form of tax and non-tax revenues. That is called as government budget. ध्यान में आ रहा है आपको? अर्लियर वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है. अगर नहीं ध्यान में आ रहा है जाके देखो पहला वो अर्लियर वीडियोस, फिर यहाँ पे समझ में आएगा. एनीवे, सो surplus budget refers to such a situation where estimated government receipts are greater than estimated government expenditure. Such type of budget is called as surplus budget. So concept of surplus budget is understood by you. Okay. Now we are going to discuss the merits and demerits. So let's first discuss merits. Merits of government budget. My dear students, as I say always that today is also whiteboard, so chances are there that whatever I am writing on the board may not be that much clearly visible. Don't worry about that. वैसे भी मैं ज़्यादा बोर्ड वर्क कहाँ करता हूँ, ज़्यादा तो मेरा बड़बड़ी आप सुनते रहते हैं. Yes or no? Anyway, I hardly write headings और इक्वेशंस फार्मूलास एंड लाइक दिस. और मेरा हैबिट क्या है, जो लिखता हूँ कम से कम 2 या 3 बार तो मैं रीड करता ही हूँ. तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू वाइल नोटिंग डाउन. एनीवे, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, दैट इज़ सफिशेंट. बोर्ड नहीं भी होगा फिर भी मैं लेक्चर ले सकता हूँ और आपको बराबर समझा सकता हूँ. एनीवे, माय डियर स्टूडेंट्स, merits of surplus budget. As I told you that surplus budget is such a situation that estimated government receipts are greater than estimated government expenditure. Surplus budget, when receipts are greater than expenditure, is desired when economy is batting inflation. When economy is batting inflation. ये सेंटेंस पे ध्यान देना, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा. कहने का मतलब क्या है, ऐसा आप घर में बैठ के अपना सर पटकेंगे, बोलेंगे हायर इकोनॉमिक्स,
तो ये नौबत मत आने दो। और आगे क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। सरप्लस बजट इज डिजायर्ड व्हेन एन इकोनॉमी इज बैटिंग इन्फ्लेशन। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, मीन्स इन्फ्लेशन रेट इज हाई, इन सच अ केस surplus budget is prepared by the government or it will be helpful for the government for coming out from that inflationary situation. Did you listen properly? मैंने अभी क्या बोला कि अगर देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है, अगर देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन से बाहर आने के लिए गवर्नमेंट के लिए क्या अच्छा होता है? दैट गवर्नमेंट शुड डिज़ायर फॉर सरप्लस बजट। मीन्स व्हाट? आप उल्टा सोचो। क्या उल्टा सोचो? कि ये इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्यों है? वाई देर इज अ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन? बिकॉज ऑफ एग्रीगेट डिमांड। Means aggregate demand is more and because of there is a inflation. So आप उल्टा सोचो कि ये एग्रीगेट डिमांड मोर क्यों है? बिकॉज ऑफ मनी। भाई लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा है। मीन्स व्हाट? लॉट ऑफ मनी इज रनिंग इन द मार्केट. The flow of money in the market is more. Very simple. The flow of money, or we can say quantity of money which is being rotated in the market is more. मार्केट में ज़्यादा का पैसा घूम रहा है, या ऐसा भी बोल सकते हैं लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा है, तो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और सामने सप्लाई कम होने का वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो उसको कंट्रोल कैसा करने का? एस्टिमेटेड रिसीट्स को बढ़ाओ। मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट फिर अपना प्लानिंग ऐसा करेगी कि ज़्यादा का टैक्स रेवेन्यू, ज़्यादा का नॉन टैक्स रेवेन्यू, ताकि वो जो एक्सेस मनी सप्लाई है इन द मार्केट वो गवर्नमेंट के पास आ जाए। तो जब एक्सेस मनी सप्लाई गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, अपने आप वो एग्रीगेट डिमांड ये रिड्यूस हो जाएगा और जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन बना है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज सजेस्टेड दैट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द सरप्लस बजट इज डिजायर्ड। आई होप आपको डिस्कशन समझ में आ रहा है, सब लोग बराबर ध्यान से सुन रहे हैं। डीमेरिट्स ऑफ द सरप्लस बजट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्फ्लेशन का बात किया इन केस ऑफ मेरिट्स, तो अभी डिप्रेशन का बात करेंगे। दैट ड्यूरिंग डिप्रेशन द गवर्नमेंट शुड नॉट डिजायर During depression, the government should not desire for surplus budget. कहने का मतलब क्या है? डिप्रेशन के दरमियान सरप्लस बजट बनाना ये समझदारी का फैसला नहीं होता है। डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है। एग्रीगेट डिमांड कम क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पैसे कम है, मनी का फ्लो कम है, मनी मार्केट में कम है। दैट्स वाई एग्रीगेट डिमांड कम, दैट्स वाई देयर इज डिप्रेशन। आज का सिचुएशन वही है। यस और नो? यस बेटा, आज का सिचुएशन वही है। मतलब ड्यू टू कोविड-19 कितने लोगों के खाने के लाले पड़ गए, लाखों लोगों के जॉब चले गए, नौकरियां चली गई, पिछला 5-6 महीने से घर में बैठे हैं सॉरी। तो ऐसा सिचुएशन में आप भी देखते होंगे मार्केट में, अगर आपका अपना कुछ छोटा मोटा धंधा है, व्यापार है, आपका बिजनेस है, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, कस्टमर ही नहीं है, धंधा ही नहीं हो रहा है, मतलब
कहाँ से धंधा होगा, कहाँ से कस्टमर आएंगे, जब परचेसिंग पावर मतलब उनका जो अर्निंग कैपेसिटी एकदम ना के बराबर हो गया, घर में बैठे 4-5 महीना से। डू यू एग्री और नॉट? तो ऐसे टाइम पे क्या सरप्लस बजट बनाना ये समझदारी का फैसला होगा? नहीं। फिर क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट ने वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए डेफिसिट बजट बनाना चाहिए। डेफिसिट बजट बनाएंगे तो फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, फिर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट लेवल ज़्यादा होगा और ज़्यादा का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा, धीरे धीरे लोगों को जॉब मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सॉरी, मार्केट में जो अभी वो मनी का फ्लो कम था वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये इसका डीमेरिट्स है। क्या डीमेरिट्स है? दैट इन सरप्लस दैट ड्यूरिंग डिप्रेशन सरप्लस बजट इज नॉट सजेस्टेड इन केस ऑफ डिप्रेशन। सो आई होप दैट आपको सरप्लस बजट बराबर समझ में आ गया है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड वन, दैट इज डेफिसिट बजट। फर्स्ट, ओके, लेट इट बी लाइक दिस। ये जो कोने कोपरे में खाली जगह है इतना मैं यूज़ कर लूँगा। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर our the point which we are going to discuss is deficit budget. Deficit budget. My dear students, आज का लेक्चर का शुरुआत में मैंने बोला अनबैलेंस्ड बजट मतलब आइदर इट विल बी सरप्लस बजट और इट विल बी डेफिसिट बजट। तो सरप्लस बजट हमने डिस्कस कर लिया, उसका मेरिट्स और डीमेरिट्स। पहला वो कंसेप्ट डिस्कस किया, द कंसेप्ट ऑफ सरप्लस बजट, देन वी डिस्कस्ड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट बजट। अगर किसी स्टूडेंट को सरप्लस बजट समझा है तो उसको ये डेफिसिट बजट आराम से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये उसका अपोजिट है, उसका उल्टा है। ये सरप्लस में क्या बोला? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर ग्रेटर दैन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब डेफिसिट बोलने के टाइम पे इसका उल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर दैन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स। लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आई होप समझ में आ रहा है। डेफिसिट बजट रिफर्स टू व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर greater than estimated government receipts. Such a situation is called as budget deficit. मतलब estimated जो government expenditure है वो ज़्यादा है। Very simple. Now I hope concept समझ में आ रहा है आपको। Keynes and other modern economists stress significance of deficit budget, highlighting its merits. My dear students, जब मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट सिखाया था तो वो टाइम पे बताया था उसका इम्पोर्टेंस, फिस्कल डेफिसिट का, इवन उसका जो इम्प्लीकेशंस है वो भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। वही बात यहाँ पे एक बार फिर से सामने आ रही है, दैट कीन्स एंड अदर इकोनॉमिस्ट उन्होंने हाईलाइट किया कि दैट वाई दिस फिस्कल डेफिसिट इज गुड। इन विच सेंस? माय डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मेरा बात चल रहा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का, एग्रीगेट डिमांड का। वही बात अब फिर से करना है थोड़ा दूसरा ढंग से। कैसे? क्या कीन्स ने क्या रिकमेंड किया? दैट बजट डेफिसिट इज की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। ये हम लोग मेरिट्स में सीख रहे हैं। व्हाट डिड कीन्स सजेस्टेड? कीन्स ने बताया कि डिप्रेशन का जो सिचुएशन है, डिप्रेशन इन द इकोनॉमी जैसा अभी हमारे यहाँ पे है, अगर इसको सही करना है, करेक्ट करना है, तो देयर शुड बी डेफिसिट बजट। मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्रीज्ड एज वेल एज government should promote, government should encourage
the private parties, private businessmen, individuals, industrialists, that they should come for investment in the country. And because of that, what will happen because of that? Because of that, employment opportunities will be created. People's earning will increase, and because of additional earnings, they will demand more, means aggregate demand will increase. So that's why these Keynes suggested for what? For deficit budget, directly by way of high government expenditure and indirectly by inducing greater, that is investment and consumption expenditure by the people. Same thing I told you, that government should encourage, government should induce for investment and the expenditure. Now demerits, what is the demerits of the deficit budget? इसका अपोजिट बात करेंगे कि इन्फ्लेशन का सिचुएशन में जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो ऐसा टाइम में, स्पेशली व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर, एट द टाइम डेफिसिट बजट नहीं होना चाहिए. डेफिसिट बजट नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन. क्यों? क्योंकि भाई पहले से मनी सप्लाई ज़्यादा है, पहले से परचेसिंग पावर ज़्यादा है, पहले से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है. अब ऐसे टाइम पे अगर डेफिसिट बजट बनाएंगे तो डेफिसिट बजट का दूसरा मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट. तो बोरोइंग क्यों करेगी गवर्नमेंट? फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. बाय द वे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का ही दूसरा मतलब होता है इन्वेस्टमेंट. तो ऐसे टाइम पर जो पहले ही इन्फ्लेशन है, पहले ही एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो बजट डेफिसिट ये समझदारी का फैसला है क्या? नहीं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, it is a demerits. So I hope that you have understood both the concept, that is a surplus budget as well as a deficit budget. In nutshell, एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूँ. सरप्लस बजट, ध्यान से सुनना, समराइज कर रहा हूँ मेरा लेक्चर को. सरप्लस बजट मतलब ऐसा सिचुएशन व्हेन estimated government receipts are greater than estimated government expenditure. अब यहीं पे अगर बताना हो what is a deficit budget, इसका अपोजिट बोलूँगा. क्या बोल रहा हूँ? ध्यान देना. When estimated government expenditure is greater than estimated government receipts, such a situation is called as deficit budget. Got it, everybody? No doubt? Okay. I hope that my dear students, आज का डिस्कशन में आपको हर एक चीज़ बराबर समझ में आया है. ये अनबैलेंस्ड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, एट द स्टार्टिंग ऑफ माई लेक्चर आई टोल्ड यू दैट इट इज़ पार्ट वन ऑफ द टॉपिक, दैट इज़ बैलेंस्ड बजट एंड अनबैलेंस्ड बजट. बैलेंस बजट ये पार्ट 1 में, मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, और ये आज अनबैलेंस्ड बजट भी हमारा ख़त्म हो गया. विद दिस वी कुड कंप्लीट दिस चैप्टर. टुडे आवर चैप्टर नंबर 5, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इज ओवर. ऑल द थिंग्स आर डिस्कस्ड. कुछ भी इसमें अब कोई भी टॉपिक रिमेनिंग नहीं है. देयर इज़ नो अनडिस्कस्ड टॉपिक. एट द बिगिनिंग, नाउ सी द सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स, हाउ वी completed this chapter number 5. My first video lecture was concept of budget. Only concept of budget I discussed. Then in the second video lecture I started budget structure, that is components of budget. Only structure was discussed. Third video lecture I started government receipts. Then two subdivided
headings. Further, they classified as capital receipts and revenue receipts. Then, like this, one video on capital receipts, the other video on revenue receipts. Then next side, that is budget expenditure, two videos, capital expenditure and revenue expenditures. So like this, 4 videos, and earlier 2 video lectures, 6 video lectures. In between this, I discussed with you tax revenue, non-tax revenue. Yes or no? Then I discussed with you budget deficit. Budget deficit I covered in 4 video lectures, and today this balanced budget and unbalanced budget I covered in 2 video lectures. So if you go on counting, there are number of video lectures which I have taken. So watch all the videos again and again, and if any doubt you can write in comment box, or you can WhatsApp me. You know my WhatsApp number already given to you, 9987326110. If you want to talk to me, you can call upon 9198985928. My dear students, I need your cooperation. And at the last, chalte, I would say that don't forget to like, to comment, and to share my video lectures. Thank you very much for your kind cooperation. That's all for the day.